Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. We are students, it's class 12, subject geography, and our topic is a dangerous disease of the world, that is cancer. Cancer. Dear students, cancer may be defined as a malignant growth of or enlargement of tissues. Malignant growth or enlargement of tissues that occurs due to unlimited and uncontrolled mitotic diffusions of certain cells that invades surrounding tissues. I would like to repeat again. Malignant growth or enlargement of tissues that occurs due to the unlimited and uncontrolled mitotic diffusions of certain cells that invade surrounding tissues. In other words, I would like to say you that cancer is the unlimited and uncontrolled multiplication of cells. When there remains no control in growing and in the movement of the cells or the tissues, we can say that in the body there is a cancer. There is a cancer. So we can say that cancer, malignant growth and enlargement of tissues that occurs due to the uncontrolled and unlimited mitotic diffusions of certain cells that invade surrounding tissues. Then, how we can detect this cancer? How we can detect? What are the symptoms? First, we have to know the symptoms. How we can say that the patient or the individual is really suffering in a cancer, and how we can detect the cancer by itself, by knowing the symptoms and by knowing the symptoms, and how we can detect it at the initial stage. मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें पता होना चाहिए, हम अवेयर होना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स हो खुदा न खास्ता तो हम इनिशियल स्टेज पे इस कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. For example, the first symptom we can say that any wound in the body, any wound in the body, in every part of the body or in any part of the body which does not heal in a proper time. मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जिस्म पे ऐसा कोई जख्म आ जाए और ये जख्म अपने वक्त में, जो इसके लिए एक मौजूद वक्त है इसके ठीक होने में, इसमें ठीक नहीं हो जाएगा, हील अप नहीं हो जाएगा, तो हम ये जरूर समझेंगे कि ये सिम्टम है कि इस पेशेंट, इस इंडिविजुअल को शायद कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये वाउंड जो है इस वाउंड को एक प्रॉपर टाइम में ठीक होना चाहिए था, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ. When it is not healed up in a normal time or in a proper time, we can say in a proper time or in a normal time, we can say that the individual or the patient, we can say that शायद इससे कैंसर हो सकता है. दूसरा जो सिम्टम है, इन सिम्टम्स को हमें बड़े गौर से याद रखना चाहिए. Bleeding from any body opening, bleeding from any body opening. अगर हमें बॉडी के किसी भी सुराख से, किसी भी ओपनिंग से
कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहेगी, तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि ये पेशेंट ये चीज कैंसर हो सकता है, एक चीज कैंसर हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी बॉडी ओपनिंग। पर यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखिए कि अगर किसी को हेमोराइड्स है, किसी ऐसे इंसान को हेमोराइड्स है, तो इसको बड़े पेशाब की नाली से ब्लीडिंग आती रहती है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कैंसर है। बाकी अगर इसको बगैर ऐसे किसी बीमारी के ब्लीडिंग हो रही है किसी भी ओपनिंग से, तो ये एक जरूर ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि ये पेशेंट, ये इंडिविजुअल कैंसर पेशेंट हो सकता है। तो इनिशियल स्टेज पे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। A lump or a hard tissue, a lump or hard tissue in any part of the body, and it grows day by day. अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पे कोई हार्ड टिश्यू पैदा हो जाएगा, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं सेस, अगर ऐसा हार्ड टिश्यू डे बाय डे, दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है, तो जरूरी है कि ब्लड में कहीं पे ऐसा है, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये हार्ड टिश्यू दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये भी एक सिम्टम हो सकता है कैंसर को डिटेक्ट करने में। चौथी चीज, परसिस्टेंट indigestion or difficulty in swallowing। अगर लगातार इंसान जो खाता है इसको बदहजमी रहते हैं, हजम नहीं होता है, इंडाइजेशन हो जाती है, या खाने के वक्त ये अच्छी तरह से फूड पाइप के जरिए इस गुज़ा को म्यादे में नहीं पहुंचा सकता है, इसको मुश्किलात आ जाते हैं, तो ये जरूरी है, इट इज देन नेसेसरी कि ऐसा पेशेंट कैंसर पेशेंट हो सकता है कि इस पेशेंट में कैंसर है। तो इसको हम ये देखकर हम इनिशियल स्टेज पे भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडाइजेशन कंटिन्यूअस रहती है और खाने पीने के वक्त फूड पाइप के जरिए से म्यादे में हम गुज़ा को आसानी से पहुंचा नहीं सकते हैं, तो ये जरूरी है कि ये कैंसर हो सकता है। परसिस्टेंट कफ, अगर लगातार जो कफ है वो होती रहती है, यानी लगातार अगर इस बार चास तो इस वनो ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज जरूरी है, आपकी कंफ्यूजन न खाए, कोई अस्थमा पेशेंट होता है या किसी को ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस वाले को भी ये कफ रहते हैं और अस्थमा वाले को भी ये कफ रहते हैं। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं ये भी क्यूरेबल डिजीज है और ये भी क्यूरेबल डिजीज है, जबकि कैंसर अभी क्यूरेबल डिजीज नहीं है। हाँ, अगर इसको इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट किया जाए तो फिर ये क्यूरेबल हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई ट्यूबरकुलोसिस या अस्थमा वाले को हम ये कहेंगे कि आपका कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक सिम्टम जरूरी है कि अगर लगातार ऐसा होता रहेगा तो ये हो सकता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, हाँ, अगर किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे इंडिविजुअल को लगातार ब्लड कम होता रहता है, ब्लड कम हो जाता है बगैर किसी बीमारी के, कि इसका ब्लड या एनीमिया वगैरह किसको वगैरह नहीं है, तो इसको ब्लड जो है वो कम होता रहता है, तो हमें ये जरूर कहना चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स को भी कैंसर हो सकता है और इसको भी हम इनिशियल स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, अगर किसी की बॉडी का वजन लगातार कम होता रहेगा, ये भी सिम्टम हो सकता है। बाकी सिम्टम उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ड्यू टू लैक